Shri Dinesh Madanji, Chairman, RDCA. Please welcome on the stage, sir. Good afternoon, everybody. And Manch par Asin, Dr. Pradeep ji, Dr. Panda ji, Poonawala ji, Shrimati Shakuntala ji, and Amitabh ji. Actually, I was not supposed to be the speaker, but since I belong to an organization, All India Organization of Chemists and Druggists, of which almost about 12 lakh members are there and own more than 10 lakh chemist shop in the country are our members. And we people are the service providers, or honestly speaking, I'm a pharmacist. And ये अभी जो आज है वो है इंडिया फार्मासिस्ट अधिवेशन. आज 2 चैप्टर साथ साथ चल रहे हैं. नाम है फार्मासिस्ट अधिवेशन, मगर हम रेगुलेटरी पर बात कर रहे हैं. फार्मासिस्ट जो है, कभी बहुत ही कम देश के अंदर फार्मासिस्ट ऐसे हुए हैं जो कि रेगुलेशन में अपना सक्रिय भाग ले सके. Because we are generally on the other side of the counter, where the customer and the regulatory authorities, we are the dispensing people, selling people, and those are the buyers and the regulator who control us. Despite discharging all our duties diligently, but we still remain on the other side. अभी बहुत बारी कोविड की बात हुई. हम लोग एक ऐसे लोग हैं जो कि अनसंग हीरोज रहे, फॉर द सिंपल रीजन, ना तो गवर्नमेंट डॉक्टर, वी आर ऑन अ फार्मासिस्ट जनरली जो होते हैं वो डॉक्टर्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. दे डोंट सब्स्टिट्यूट देम एट ऑल, दे कॉम्प्लीमेंट देम. बट डॉक्टर्स जो हैं इसके अंदर वो कहलाए गए, और क्या फार्मासिस्ट का नाम भी नहीं पूछा गया, भाई तुम मर गया क्या हुआ, जो कि सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक दवाइयां सबको देता रहा. मगर उसको कोई रिकॉग्निशन, अनफॉर्चुनेट, मगर यहां पे डायस पर सबने ये माना कि उनको रिकॉग्निशन नहीं दी गई. गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी, but we still remain the unsung heroes, and many of our colleagues died also. I'll not take up that issue. Now, this farmers, our association members are, honestly speaking, the largest single association who gives employment to over 15 lakh pharmacists in the country. Yes. यहाँ पे I represent Delhi Pharmacy Council also. I have my President Rajneesh Tyagi ji here, who is the President of Delhi Pharmacy Council. We look after the interests of almost 18,000 pharmacists in the city employed in all systems. But this is about the pharmacists. So today we are talking about the regulations, and as an All India Organization of Chemists and Druggists, we coordinate with the government agencies to formulate the policies, and we also bring up the problems faced by for our traders, our members. And the most important, the burning issue is the unregulated, unlicensed online pharmacists in the country. Because it is accepted by the Delhi High Court, by everybody, that online pharmacies are illegal, and government has to bring up some regulation. I think I have my expert on this thing, and we would, on behalf of AICD, I would only like to speak on this issue on online pharmacy. May I call my colleague Yash Agarwal to just
briefly explain what the situation of the online pharmacies is? Amitabh, I hope you don't mind on that. In a few seconds. Thank you. ठीक है. Thank you. Come, yes, please. Thank you. थैंक यू दिनेश जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. जैसे इन्होंने बोला, ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स इज अ इशू विच हैज़ बीन बर्निंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड हम सब सोचते हैं, आपने देखा होगा 2018 में, डेट भी मुझे याद है, 13 दिसंबर 2018 में फ्रंट पेज पे आया, दिल्ली हाई कोर्ट बैन्स ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स. 13 दिसंबर 2018 में आ तो गया, मगर आज तक कुछ बैन नहीं हुआ. अब ये सैड पार्ट कहें या कहें, आज जब हम इसकी कार्डर की बात कर रहे हैं तो मुझे शायद ये रियलाइज हो रहा है कि अगर ऐसा कोई कार्डर एग्जिस्ट करता ऑलरेडी, जैसे पांडा जी ने बोला कि इसमें सिर्फ फार्मासिस्ट, जो आपका 5th पॉइंट था पांडा जी, कि सिर्फ फार्मासिस्ट नहीं चलेंगे, इसमें लीगल एक्सपर्ट्स भी चाहिए होंगे, IT एक्सपर्ट्स भी चाहिए होंगे, प्रोफेशनल्स भी चाहिए होंगे. अगर ऐसा कोई कार्डर ऑलरेडी होता है इस कंट्री के अंदर, तो शायद आज हमें ये फेस करने को नहीं मिलती सिचुएशन वेयर इन एक ट्रेड या एक फॉर्म ऑफ ट्रेड इलीगल, मगर वो थ्राइव कर रहा है. दिस इज वेरी सैड सिचुएशन इन द कंट्री एंड दैट इज दिस प्रॉब्लम कुड हैव बीन सॉल्व्ड विद द कार्डर, जैसे जो ये कह रहे हैं. तो एक छोटा सा बैकग्राउंड देखेंगे इस पे. तो एक फार्मासिस्ट होता है, एक फार्मासिस्ट के पास एक पेशेंट जो है वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है, और प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है, आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे उनको दवा डिस्पेंस करते हैं. यही एक नॉर्मल रूटीन है. इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होती है, वो होती है डिस्पेंसेशन ऑफ द मेडिसिन एंड द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर. इसके बिना दवाई नहीं दी जा सकती. प्रिस्क्रिप्शन जो कि एक डॉक्टर आपको देगा, और डिस्पेंसेशन जो कि एक फार्मासिस्ट आप पे करेगा, आपकी दवाई की करेगा, आपको देगा. ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स में ये दोनों चीजें नहीं हो पाती. सैडली फिर भी ऑनलाइन की सेल्स चल रही है. अब इसकी बात करें तो आप सब के हाथ में फ़ोन है, आप सब जानते हैं ऑनलाइन फार्मेसीज कितनी हैं. आप वहाँ पे जाइए, आप अपनी दवाइयाँ टाइप कीजिए जो आपको चाहिए, आप उस पर एक बटन होता है, उस पर दबाएंगे आई डोंट हैव अ प्रिस्क्रिप्शन, एंड दैट्स इट. एक प्रिस्क्रिप्शन आपको कॉल आएगी, जो आपको नहीं पता कि किसी फार्मासिस्ट की है या डॉक्टर की है या किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की है, और आपका एक प्रिस्क्रिप्शन बन जाएगा, और आपका प्रिस्क्रिप्शन बन के आपके ऐप पे आ जाएगा, और आपकी दवा 3 minutes. ओके, आई जस्ट 2 minutes में खत्म करूँ. सो थोड़ा टाइम कम है तो, बट एनीवेज, सो दिस इज द वे द जनरल ट्रेड ऑफ pharmacists work, but obviously the online pharmacies obviously are not doing it this way. They are making their own prescriptions, they're sending you medicines. इस पे हाई कोर्ट के ऑर्डर है, 2018 से पेंडिंग है, 2018 से वैलिड है, जो कि इंजंग करता है ऑनलाइन सेल ऑफ मेडिसिन, मगर वो फिर भी चले जा रही है. इसमें कई बार हमारी एज एन एसोसिएशन हम बहुत बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दी हेल्थ मिनिस्ट्री, इन वेरियस कमिटीज़. एक बार पार्लियामेंट्री कमिटी में भी हमने जाकर प्रेजेंटेशन दी थी, एंड उस पे, एंड इनफैक्ट इन द लास्ट हियरिंग इन द दिल्ली हाई कोर्ट, से 2 months बैक, the central government came in the high court and said, the council for central government, that we are unable to make rules on the online sale of drugs. The Delhi High Court may take their own view on the case. मगर फिर भी ये मेडिसिन ऑनलाइन सेल ऑफ ड्रग्स थ्राइव कर रही हैं. एंड टाइम थोड़ा कम है, बट आई विल जस्ट पुट अ पॉइंट अक्रॉस दैट द प्रॉब्लम ऑफ AMR, which is a very big threat to our country and the health of our country, we are exponentially increasing that threat with the unregulated sale of medicines. तो जैसा यहाँ पे आज टॉपिक है, अगर ऐसा कोई कार्डर हो जिसमें ऐसे एक्सपर्ट्स हो, तो आई एम श्योर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जा सकती है. थैंक यू.